میں نہیں جانتی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن میں ابھی آپ کو ایڈریس نہیں دے سکتی۔ مجھے ان سے بات کر لینے دیجیے۔ وہ بڑی تیزی سے اپنے کمرے کی طرف آ گئی تھی۔ عمر جعفر اس کے پیچھے نہیں آئے تھے۔ اس دن وہ کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کر پائی تھی۔ ہر چیز غلط ہو رہی تھی۔ شام کو اس نے راولپنڈی رابیل کو فون کیا تھا اور اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں پرسوں لاہور جا رہی ہوں، بہتر ہے تم بھی آ جاؤ، اس نے رابیل سے کہا تھا۔ دوسری طرف سے کچھ کہے بغیر ریسیور رکھ دیا گیا تھا۔ سنبل اسے اچانک دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ کیا بات ہے جویریہ، تم دونوں آخر اس طرح اچانک کیوں آ گئی ہو؟ تھوڑی دیر پہلے ربیل آئی ہے، وہ تب سے کمرہ بند کر کے بیٹھی ہے، اور اب تم آخر ہوا کیا ہے؟ سنبل اب کچھ پریشان ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ کچھ دیر تک اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس نے نظریں چرا لی۔ کچھ کہے بغیر وہ اندر چلی آئی۔ اپنا ٹریول بیگ اتار کر اس نے لاؤنج میں رکھ دیا۔ سنبل اس کے پیچھے ہی آئی تھی۔ تم اس طرح چپ کیوں ہو جویریہ؟ آخر پتہ تو چلے ہوا کیا ہے؟ اس نے سنبل کے چہرے پر نظریں کاٹ دی۔ اسے یاد آ رہا تھا، وہ دونوں اسے عظیم سمجھتی تھی، ان کے نزدیک وہ دیوی تھی۔ ان کا خیال تھا سنبل نے ان دونوں کی خاطر ساری عمر شادی نہیں کی، اور لیفٹیننٹ کرنل عمر جعفر نے کہا تھا وہ شادی کرنا چاہتی تھی اپنے سے 7-8 سال چھوٹے کسی کیپٹن سے، اس کے گھر والوں کی مرضی کے بغیر، اور پھر ہمارے نہ چاہنے کے باوجود انہوں نے اسی سے شادی کی۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے ان سے میل جول ختم کر دیا تھا۔ کیا بات ہے جویریہ، مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ جویریہ نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے تھے، وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ آپ نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا؟ اس نے بلند آواز میں سنبل سے پوچھا تھا۔ وہ اس پر دک سے رہ گئی تھی۔ کون سا جھوٹ؟ آپ جانتی ہے آپ نے کیا جھوٹ بولا ہے؟ سنبل کا سانس رکنے لگا تھا۔ رابیل اپنے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ عمر جعفر ہمارا باپ نہیں ہے۔ جویریہ کا لہجہ تلخ تھا۔ تم سے کس نے کہا ہے؟ اسے اپنا وجود کسی کھائی میں گرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ عمر جعفر نے، آپ کے بھائی نے۔ اس کے دل کی دھڑکن رک گئی تھی۔ اس نے جویریہ کے چہرے پر سے نظریں ہٹا لی۔ بہت آہستگی سے وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ گردن جھکائے وہ بے حس و حرکت کسی مجرم کی طرح بیٹھی رہی۔ جویریہ کو یک دم اس پر ترس آیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ سنبل نے رابیل کو کہتے سنا، ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے جویریہ، پہلے انہیں بتانے دو کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کیوں کیا ہے۔ جویریہ اس کے پاس نہیں آئی تھی۔ اپنے سے کم عمر مرد خاندان کی مرضی کے بغیر شادی، گھر والوں سے بغاوت، طلاق، اولاد کی باپ کے نام کے بغیر پرورش، جدوجہد، قربانی، ٹھوکریں، اولاد کا کیریئر، میں انہیں کیا کیا بتاؤں گی، کیا کیا چھپاؤں گی؟ اور میں 24 سال بعد بھی وہیں کھڑی ہوں کٹہرے میں، خطاوار، گناہ گار۔ مگر ٹھیک ہے، میرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ میں نے غلطی کی تھی، مجھے اس کی سزا بھی ملنی چاہیے تھی، مجھے اس سزا کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ اس نے سوچا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے تم لوگوں سے جھوٹ بولا تھا، فراڈ کیا تھا، مجھے تم لوگوں کو سچ بتا دینا چاہیے تھا، تمہیں فریب میں نہیں رکھنا چاہیے تھا، مگر میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں تم لوگوں کو بچانا چاہتی تھی، میں نہیں چاہتی تھی تم دونوں اتنی لمبی چوڑی وضاحتیں پیش مت کریں، صرف سچ بولیے، وہ جو آپ نے آج تک نہیں بولا۔ سنبل نے سر اٹھا کر رابیل کو دیکھا تھا۔ وہ اب صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں شناسائی کی کوئی چمک نہیں تھی۔ اسے یاد آیا تھا حسن سے آخری ملاقات میں وہ بھی اسے اسی طرح دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے ان کو سب کچھ بتا دینا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی تلخ، کتنا ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔ اس نے سوچا تھا۔ بیٹھ جاؤ جویریہ، کھڑے ہو کر تم وہ سب کچھ نہیں سن پاؤ گی، اس نے جویریہ سے کہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے سامنے فلور کشن پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری تھی، لفظ اکٹھے کرنے شروع کر دیے تھے۔ کوئی عدالت اولاد کی عدالت سے زیادہ سخت نہیں ہو سکتی، اور آج وہ اسی عدالت میں تھی۔ سر جھکا کر اس نے بولنا شروع کر دیا تھا، اپنی زندگی کی کہانی، نرسنگ جوائن کرنا، بہن بھائیوں کے لیے احسار، حسن سے پہلی محبت، اس کا تعاقب کرنا، اس کا بچنے کی کوشش کرنا، حسن کی ضد، اس کی باتیں، شادی کا پرپوزل، اس کا ہار ماننا، حسن کی محبت میں گرفتار ہونا، گھر والوں کا شادی کی اجازت نہ دینا، اس کی ضد، حسن سے خفیہ شادی، حسن کا رویہ، ان دونوں کی پیدائش، حسن کا طلاق دینا، انکوائری کے بعد ڈی موشن، حسن کے باپ کی بلیک میننگ، اس کا شرائط قبول کرنا، انہیں حسن دانیال کی بجائے عمر جعفر کا نام دینا۔ اس نے کچھ نہیں چھپایا تھا، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ دہرایا تھا۔ وہ سب کچھ کہہ دیا تھا جو پچھلے 24 سال سے اس کے ذہن پر نقش ہو گیا تھا۔ مجھے تم لوگوں کی پیدائش پر کوئی شرمندگی نہیں تھی، نہ ہی پچھتاوا۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، ہاں غلطی ضرور کی تھی، مگر میں نے تم لوگوں کو اس غلطی کی سزا نہیں دی۔ میں نے تمہارے باپ کی طرح تمہیں نہیں چھوڑا، میں چاہتی تو چھوڑ سکتی تھی، مگر میں نے ایسا چاہا ہی نہیں۔ میں نے عمر کا ایک حصہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے قربان کر دیا،
बाकी उम्र तुम लोगों के लिए गुजार दी, अपने लिए सिर्फ 1.5 साल गुजारा था। इस 1.5 साल ने मुझे पताल में फेंक दिया। मैं दोबारा कभी इस पताल से बाहर ही नहीं आ सकी। मगर मैंने तुम दोनों को इसमें घसीटने की कोशिश नहीं की। मैंने तुम दोनों को वो सब कुछ दिया जो मैं दे सकती थी। जो नहीं दे सकी वो मैं नहीं दे सकती थी। मैंने 24 साल अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए गुजारे हैं, मगर मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। मुझे अपनी गलती का खमियाजा भुगतना ही था। मैंने बहुत दफ़ा तुम्हें ये सब कुछ बताना चाहा, लेकिन हर बार मैं खौफजदा हो जाती थी। मैं चाहती थी तुम दोनों बड़ी हो जाओ, अपने कैरियर इस्टेब्लिश कर लो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। मगर मैं फिर भी ऐसा नहीं कर सकी। इस सब की वजह तुम दोनों को जो तकलीफ पहुंची है, मैं इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। इस सब की वजह से तुम दोनों को जो तकलीफ पहुंची है, मैं इसके लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने 24 साल तक तुम दोनों की खिदमत की है। मैं इतने की मुस्तहिक हूँ कि मुझे माफ़ कर दिया जाए। इसने गीली आंखों के साथ सर उठाते हुए इनके आगे हाथ जोड़ दिए थे। रबेल इसके सामने सोफे पर बैठी हुई थी, बाएं हाथ से मुंह को छुपाए, नजरें इसी पर जमाए। वो बेहिस्सो हरकत थी। इसने ज्वेरिया की आंखों में आंसुओं की चमक देखी थी। अगले ही लम्हे वो भागती हुई इसके साथ आकर लिपट गई थी। सुंबल ने इसे फूट फूट कर रोते देखा था। फिर वो खुद भी इसके कंधे पर सर रखकर बुलंद आवाज़ में रोने लगी थी। मैंने कोई गलती नहीं की मामा, आपने कोई गलती नहीं की मामा, आपने कोई गलती नहीं की मामा, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। आपने जो कुछ किया ठीक किया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। इसके कानों में ज्वेरिया की आवाज़ आ रही थी। पता नहीं कितनी देर वो ज्वेरिया को साथ लगाए रोती रही थी। फिर इसने दरवाजे को एक धमाके से बंद करने की आवाज़ सुनी थी। वह सिसकते हुए ज्वेरिया से अलग हो गई थी। रबेल अब लाउंज में नहीं थी। इसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। इसने मुझे माफ़ नहीं किया। वो एक बार फिर सुलगने लगी थी। मामा आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं इससे बात करती हूँ। वो इसे थपक कर रबेल के कमरे की तरफ चली गई थी। 2-3 बार दरवाज़ा जोर से बजाने के बाद रबेल ने दरवाज़ा खोल दिया था। इसकी आंखें खुश्क थी और चेहरा बेतासुर। क्या बात है? इसने दरवाज़ा खोलते ही पूछा था। तुम दोनों अंदर क्यों चली गई हो? तुम अंदर क्यों चली गई हो? बाहर आओ, हमारे साथ बैठो। ज्वेरिया ने इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा था। इसने ज्वेरिया का हाथ कंधे से झटक दिया था। मैं बाहर नहीं बैठना चाहती हूँ, तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। सुमन ने इससे कहा था। आपने 24 साल तक सच छुपाया है, अब इसे जांचने के लिए मुझे 24 घंटे तो दीजिए। तुम मुझे मुजरिम समझती हो। मैं किसी को मुजरिम समझती हूँ ना बेगुनाह, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए ताकि मैं आपकी बातों को समझ सकूं, इन पर गौर कर सकूं। जो आपने कहा वो आपका वर्जन है। मुझे अपने बाप की भी बात सुननी है ताकि मैं जान सकूं कि सच्चा कौन है। और अगर आपने हमसे गलत बयानी की है तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी, और अगर आपने सच बोला है तो मैं अपने बाप को भी माफ़ नहीं करूंगी। इसने एक बार फिर एक झटके से दरवाज़ा बंद कर लिया था। आप परेशान ना हो, वो सुबह तक नॉर्मल हो जाएगी। इसे आपकी बातों पर यकीन आ जाएगा। ज्वेरिया एक बार फिर इसके करीब आकर बैठ गई थी। फिर कुछ देर बाद इसने ज़बरदस्ती सुंबल को इसके कमरे में लाकर लटा दिया था। वो पता नहीं कब तक जागती रही थी। फिर इसकी आंख लग गई थी। सुबह वो 6 बजे उठी थी। ज्वेरिया इसके पास ही बेड पर सो रही थी। वो उठकर लाउंज में आ गई। लाउंज का बैरूनी दरवाज़ा खुला था। वो बाहर आई। बैरूनी गेट भी खुला हुआ था। वो तकरीबन भागते हुए रबेल के कमरे में आई। इसके कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं था और कमरा खाली था। इसका ट्रेवल बैग भी वहाँ मौजूद नहीं था। वो इसे बताए बगैर रावलपिंडी जा चुकी थी। वो एक शॉक के आलम में खड़ी हो गई। जनरल बाबर करीम जिस वक्त ड्राइंग रूम में दाखिल हुए तो वह किताबों के शेल्फ के पास खड़ी बाजू सीने पर बांधे किताबों का जायजा ले रही थी। आहट पर इनकी तरफ पलट गई थी। गुड इवनिंग सर, उन्होंने इसे कहते सुना था। अब इसने हाथ पुश्त पर बांध लिए थे। गुड इवनिंग। उन्होंने इस लड़की को गहरी नज़रों से देखा था। लेडी डॉक्टर्स की मखसूस यूनिफॉर्म वाली साड़ी पहने वो बहुत दराज कद लग रही थी। बॉय कट बाल पंखे की हवा की वजह से माथे पर आ रहे थे, जिन्हें वो वक्तन फ़वक्तन हाथ से पीछे कर रही थी। चमकदार डार्क ब्राउन आंखों वाली इस लड़की ने इन्हें कुछ चौंका दिया था। इन्हें यूं लगा था जैसे उन्होंने इसे पहले भी कहीं देखा था। शायद आप डॉक्टर रबेल जाफर हैं, उन्होंने इससे कहा था। इस बार उन्होंने इसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट उभरते देखी थी। यस सर, बैठिए। वो इससे कहते हुए खुद भी सोफे पर बैठ गए थे। कर्नल डॉक्टर जुबैर ने फ़ोन किया था मुझे कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं, शायद मेरी किताबों के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहती हैं। बाबर करीम ने बात शुरू की थी। यस सर, मैं काफ़ी अरसे से आपसे मिलना चाहती थी। आपकी तकरीबन सारी किताबें पढ़ी हैं मैंने, और आपके कॉलम्स भी पढ़ती रहती हूँ। आपसे मिलने का काफ़ी शौक था मुझे। आप बहुत अच्छा लिखते हैं। बाबर करीम के चेहरे पर एक फखरिया मुस्कुराहट आई थी। थैंक यू। आप क्या लेंगी, चाय या कॉफ़ी या कोई सॉफ्ट ड्रिंक? जो आप लेंगे वही। वो इसकी बात पर मुस्कुराए थे। मुलाजिम के आने पर उन्होंने कॉफ़ी लाने के लिए कहा था। आपके वफादार आर्मी में हैं, आर्मी में थे लेकिन इनकी डेथ हो चुकी है। आपके फादर आर्मी में हैं, आर्मी में थे लेकिन इनकी डेथ हो चुकी है कई साल पहले। वेरी वेरी सैड। कौन से रैंक में थे? कैप्टन थे। तब तो बहुत बचपन में ही इनकी वफात हो गई होगी। हाँ, तब मैं सिर्फ 2 माह की थी सर। आजकल आप और क्या लिख रहे हैं? किसी नई किताब पर काम कर रहे हैं? राबेल ने बात बदल दी थी। 2-3 किताबों पर काम कर रहा हूँ। वैसे अपनी किताबों की तफसीलात बताने लगे। वो बड़े गौर से सुनती रही। आपने मेरी कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं? उन्होंने बात करते करते अचानक पूछा था। बहुत सी।
पीस रिसर्च इन साउथ एशिया, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स इन पाकिस्तान इंडिया रिलेशन। वो किताबों के नाम गिनवाने लगी। मैंने आपको बताया ना, मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ रही थी। जनरल बाबर करीम को इससे गुफ्तगू करना अच्छा लग रहा था। काफ़ी देर तक वो इससे बातें करते रहे, मगर हर बार इसके चेहरे पर नज़र डालते ही इन्हें कुछ उलझन होती थी, जैसे यूँ उन्होंने इसे पहले भी कहीं देखा हो, मगर कहाँ। वो बातें करने के साथ साथ सोचने में मसरूफ़ थे। सर, आपने कभी ऑटोबायोग्राफी लिखने के बारे में नहीं सोचा? काफ़ी पीते हुए इसने इनसे पूछा था। हाँ, आजकल मैं इसी के बारे में सोच रहा हूँ, बल्कि मैं अपने आबाओ अजदाद के बारे में भी लिखना चाहता हूँ। शायद आपको पता हो, मेरे वालिद कर्नल थे, मैं जनरल के इस रैंक तक पहुँचा। अब मेरा छोटा बेटा हसन दानियाल भी इस रैंक तक पहुँचेगा। फिलहाल ब्रिगेडियर के तौर पर काम कर रहा है। मेरा बेटा भी इस रैंक तक जरूर पहुंचता, मगर 71 की वार के बाद इसे जंगी कैदी बना लिया गया। बाद में इसको कुछ फिजिकल फिटनेस की प्रॉब्लम होने लगी, इसी वजह से इसने आर्मी से जल्दी रिटायरमेंट ले ली। मगर हसन की सूरत में मेरी फैमिली की तीसरी नस्ल भी जनरल की नस्ल होगी। इनके लहजे में बेपनाह फ़ख्र और गरूर था। डेट्स ग्रेट। राबिया की आवाज़ में सताइश थी। मैं चाहता हूं कि अपने आबाओ अजदाद के बारे में कुछ तफसीली काम करूं, ताकि लोगों को इनके बारे में ज़्यादा पता चल सके। वो रबेल को अपनी फैमिली के बारे में बताने लगे थे। इनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक कहाँ से था, इनका स्टेटस क्या था, इनके कारनामे क्या थे, इनकी फैमिली के लोग कौन कौन से बड़े बड़े और ओहदे ऊंचे पर काम बड़े सॉरी इनकी फैमिली के लोग कौन कौन से बड़े और ऊंचे ओहदे पर काम कर चुके थे। रबेल इनकी बातें सुनती रही थी, बड़ी खामोशी से, बड़े सुकून के साथ। बहुत देर बाद जब वो खामोश हुए तो रबेल ने इनसे जाने की इजाज़त मांगी। मुझे आपसे एक और भी बात करनी है, मगर आज नहीं, जब दोबारा आऊँगी तब करूँगी, इसने जाने से पहले कहा था। क्या मैं तवक्का रखूँ कि आइंदा भी आपसे मिल सकूँगी? ऑफ कोर्स, उन्होंने इसे खुले दिल से इजाज़त दे दी थी। थैंक यू सर, तुम एक बहुत अच्छी सामिया हो। वो दरवाजे से बाहर निकलने वाली थी जब उन्होंने कहा था। वो मुस्कुराई। मैं एक बहुत अच्छी मुकर्रर भी हूँ, लेकिन आपकी तरह सोच समझ कर और सही वक्त पर बोलती हूँ। गुड बाय सर। वो दरवाजे से बाहर निकल गई थी। जनरल बाबर करीम को इसकी बात समझ में नहीं आई थी। वो कुछ देर इसके जुमले पर गौर करते रहे, फिर कंधे उचकाकर अंदर की तरफ चले गए।